Hello students, very good morning. In the previous some previous classes we have discussed about the physical and chemical classification on fundamental basis. The physical classification is a five types: solid, liquid, gas, plasma, and BEC. Bose-Einstein condensate. But majorly we will discuss about the first three stages, that is solid, liquid, and gases. So here is for saving the time I have written the things on the board. Properties of solid. Firstly we will discuss about the properties of solid. Solid हम क्यों बोलेंगे solid? किसको अगर हम if I will call this chalk a solid, this duster a solid. Why? So there are some sort of characteristics of solid. They have fixed shape and volume. Solid का जो shape होता है, if I will consider this chalk as an example, the shape of this chalk, the volume of this chalk is fixed, is constant, it cannot be changed. But if I will take another example of petrol, suppose the shape of petrol or the volume is fixed, yes, but the shape is different. It will take the shape of the container. If I will put it in the bucket, it will take the shape of the bucket. If I will put it in the bottle, it will take the shape of the bottle. It also depends on the amount. Properties of solid, they have fixed shape and volume. The second point is they are not compressible. जैसे एलपीजी को हम कंप्रेस करके जो खाना बना जो गैस आता है डोमेस्टिक सिलेंडर्स, तो सॉलिड को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता. अगर मैं उसको फोर्स दूंगा, कंप्रेस करूंगा, इट में ब्रेक, it may split off, but it cannot be compressed. They do not need a container to hold them. I have already discussed this point in the first line. कोई भी कंटेनर, ये चॉक को कंटेन करने के लिए मुझे कोई कंटेनर की जरूरत नहीं, बट पेट्रोल को, डीजल को, या कोई भी वाटर को या गैस को कंटेन करने के लिए मुझे कंटेनर की जरूरत होता है. नहीं तो उसको मैं एक जगह से दूसरी जगह को नहीं ले सकता. They do not flow. इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहीं पे रहेगा, फ्लो नहीं होगा. सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं होता है. दे आर वेरी रिजिड. जो मैं बताया था कि रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी. रिजिडिटी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, whereas fluidity is based on the properties of liquids and gases. I have already discussed it in the previous class. They have high density. इसका जो डेंसिटी होता है हाई होता है, क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होता है और इसका डेंसिटी भी हाई होता है. देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील. सॉलिड का जो डिफ्यूजन टेंडेंसी होता है ये बिल्कुल नहीं होता है. डिफ्यूजन आप लोग बोल सकते हो डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू स्प्रेड आउट, टू एक्वायर, टू ऑक्यूपाई एन अवेलेबल स्पेस. सपोज मैं यहाँ पे वाटर को ऐसे फेंक दिया, थोड़ा जितना स्पेस है वो प्लेन में, वाटर चाहेगा पूरा उसको कवर करने के लिए, पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए. दिस इज द टेंडेंसी, दिस इज द फेनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन. बट सॉलिड का कोई डिफ्यूजन, अगर मैं डस्टर को वहां रख दूं, क्या वो फैल जाएगा पूरा? नहीं. तो इसका जो डिफ्यूजन टेंडेंसी होता है वो पूरा नील होता है. सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो. Note it down. Diffusion. It is the tendency of matter to spread out, to occupy an available space. अगर if I will consider the examples of gases and liquids, you will be able to understand this properly. Then there are some sort of questions. There may be some sort of doubts. The first question is, these three questions based on solid I have prepared. A rubber band changes its shape on stretching, but we call it solid. Why? As I have said, the solid cannot be compressed,
cannot changes its shape, but here the exceptional case, रबर बैंड जो होता है जब मैं उसको फोर्स उसमें देता हूं तो क्या होता है, अपना शेप को चेंज करता है, बट आई विल कॉल इट सॉलिड। व्हाई? क्योंकि जब मैं रबर, अच्छा से समझो, जब मैं रबर बैंड को फोर्स देता हूं, खींचता हूं, वो जरूर उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, बट व्हेन आई हैव रिमूव ऑल द फोर्सेस, जब मैं पूरा फोर्स उसके ऊपर हटा देता हूं तो तुरंत क्या होता है, इट विल रिगेन इट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो जैसे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, as the rubber band regain its original size and shape, that's why we call it a solid. These are the concept you should remember. The second question is, if salt and sugar are taking the shape of a container, then why they are called solid? सर आपने तो बोले अभी कि सॉलिड जो होते हैं कंटेनर का शेप नहीं लेंगे, बस पेट्रोल, डीजल, लिक्विड गैसेस यही लेंगे, बट जब हम कोई घर को सामान आता है तो हम सॉल्ट और शुगर को तो कंटेनर में ही रखते हैं, वो तो कंटेनर का शेप लेते हैं, तो हम उसको क्यों सॉलिड बोलेंगे? डू नॉट कंसीडर द सॉल्ट एंड शुगर एज ए होल, उसका एक एक पार्टिकल आप लोग कंसीडर करोगे। इफ यू विल कंसीडर वन पार्टिकल इंडिविजुअली ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, देन इट डजंट रिक्वायर एनी कंटेनर टू होल्ड इट एंड दीज आर सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं 1 किलो 1.5 किलो का जो सॉल्ट शुगर हो उसको मैं लाऊंगा, उसको मैं रखूंगा, उसके लिए कंटेनर चाहिए, बट अगर मैं एक एक पार्टिकल को कंसीडर करूंगा उसके लिए मुझे कोई कंटेनर की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई। और एक बात, उसका जो पर्टिकुलर पार्टिकल होता है उसका जो शेप होता है वो पर्टिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, a sponge can be compressed easily, so why do we call the sponge a solid? स्पॉन्ज जानते हैं सब, स्पॉन्ज को जब मैं कंप्रेस करूंगा वो तुरंत कंप्रेस हो जाएगा, फिर भी मैं उसको सॉलिड, उसको तो लिक्विड गैस नहीं कहूंगा, मैं सॉलिड कहता हूं। क्यों? क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है उसके बीच में जो वॉइड होता है, स्पेसेस होता है, वो स्पेसेस को जब मैं कंप्रेस करूंगा उसमें जो एयर होता है वो निकल जाता है बाहर। ओके, जब अच्छे से समझो, जब मैं स्पॉन्ज को फोर्स देता हूं, कंप्रेस करता हूं, उसके बीच में जो एयर होता है वो एयर बाहर को निकल जाता है, बट जब मैं तुरंत हाथ हटा दूंगा या फोर्स रिमूव कर दूंगा, फिर जो एयर है वो फिर उसका जो स्थान वो ले लेगा। मतलब जैसे था स्पॉन्ज का जो शेप जैसे था, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप लाइक द रबर बैंड। तो जो भी चीज अगर इसका जो ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है उसको मैं बोलता हूँ सॉलिड। हाँ, फोर्स देने से उसका जो स्ट्रेचिंग होता है या कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, बट इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट सॉलिड। नोट इट डाउन। Yes. So as you have listened properly about the properties of solids, so there won't be any problem to understand these liquids and gases. Very simple things. We are taking this with live examples. Then we will get to know properly. They have fixed volume but no fixed shape. जैसे मैं पहले as I have said earlier, properties of liquid, the first property is they have fixed volume but no fixed shape. Suppose 1 liter of water, 1 liter of water, I may put it in a bucket, I may put it in a bottle, so I may put it in a polythene. Okay, so उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, it will take the shape of the container, माइंड इट, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वही 1 लीटर ही, जब तक वो लॉस नहीं हो जाता किसी भी तरह से तब तक वो 1 लीटर ही रहेगा, कम नहीं होगा। देन दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है पर नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि 1 बॉटल, वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज 1.2 लीटर का जो बॉटल का कैपेसिटी है
मैं उसमें 1.2 लीटर ही भर पाऊंगा, मतलब कंप्रेस करके ज़्यादा मैं उसमें नहीं भर सकता। बट गैस के जो क्षेत्र में क्या होता है वो एक्सेप्शन होता है। गैस में कंप्रेस इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है और जितना चाहूँ मैं मेरे हिसाब से भी भर सकता हूँ। दे नीड कंटेनर टू होल्ड देम। सपोज 1 लीटर पेट्रोल में खरीदा पेट्रोल पंप से, उसको कैसे लेके जाऊंगा? उसको लेने के लिए बोतल की जरूर है। अगर मुझे खुले में चाहिए तो गाड़ी में अगर नहीं डालूंगा, उसको बोतल जरूर चाहिए, नहीं तो मैं नहीं ले सकता। दे हैव लेस डेंसिटी। इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई विल डिस्कस इट आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस टू। सो इसका जो डेंसिटी होता है एज कंपेयर टू सॉलिड ये लेस होता है, बट एज कंपेयर टू गैस ये हाई होता है। They can easily diffuse. As I have said, diffuse का मतलब होता है जितना अवेलेबल स्पेस है उसको एक्वायर करना है, उसको ऑक्युपाई करना है। सपोज मैं ये भी बता चुका हूँ, पानी यहाँ पे गिरा दूंगा, जितने वो प्लेन में जितने शेप है वो चाहेगा पूरा का पूरा एक्वायर करने के लिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस लाइक लिक्विड। बट यहाँ पे क्या होता है, ना इसका कोई फिक्स शेप होता है ना इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। और इसका जो यहाँ पे भी लिखा हूं मैं, डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत जल्दी ये डिफ्यूज हो जाता है। इट कैन बी इजीली डिफ्यूज। जैसे इजीली डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ। और दे आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे 14.8 का आता है जो गैस सिलेंडर में, उसको कंप्रेस करके हम लाते हैं, नहीं तो इतना नहीं आएगा एक सिलेंडर में। सो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी कैपेसिटी होता है हाई होता है। देयर इज नो फिक्स्ड शेप, देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। और इसका जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होता है वो भी बहुत हाई होता है। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। इसको मैं कोई भी डायरेक्शन में ये फ्लो हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। अगर गैस को मैं खुला छोड़ दूं, या जैसे धुआं जो निकलता है वो भी कोई भी डायरेक्शन में चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। दे फिल द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। मैं जितना यूनिट, चाहे 2 यूनिट का वहां पे रखूं, 4 यूनिट का रखूं, जितना भी रखूं गैस कोई भी कंटेनर में, वो पूरा कंटेनर को फिल करेगा। हाँ, उसका डेंसिटी में कम बहुत हो सकता है, बट जो पूरा कंटेनर है उसको फिल अप करके रखेगा। ये सब लाइव एग्जाम्पल आप लोग सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। I have already said it, they are very low density. इसका जो डेंसिटी होता है लो होता है। अभी मैं now we are going to discuss, just note it down. Now I am going to discuss about the explanation of molecular structures. Explanation of molecular structure for solid, liquid, gases. First, I will go for solid. When the explanation of molecular structure is concerned, for solid, the intermolecular space is very less. My thing, intermolecular space is very less. So, intermolecular force of attraction is very high. This is for solid. Again I am going to tell, for solid the intermolecular space, मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। That's why this is the reason the intermolecular force of attraction is very high. और इसका जो रिजिडिटी, इसलिए that's why we call solid as rigid, और इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड इज लेस, बट
as compared to gas is high in case of liquid, or so the intermolecular force of attraction is also as compared to solid is less, but as compared to liquid gas is high. ये हमको बहुत आसान चीज है, बट जब गैस के बारे में हम बात करेंगे तो गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसे मैं इन द फर्स्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन लाइक दिस, ऑल्सो आई हैव सेड दिस कॉम्पैक्ट शेप सॉलिड का होता है. दिस इज फॉर सॉलिड, this is for liquid. From this diagram you will get to know everything. This is for gases. So as here the intermolecular space is very less, the intermolecular force of attraction is very high, and this is rigid, very much rigid, that's why this is very much rigid also. Intermolecular space जो होता है solid के हिसाब से ज्यादा होता है, but liquid के हिसाब से कम होता है, और force of attraction भी उसी हिसाब से होता है. जैसे सॉलिड के हिसाब से कम होता है और लिक्विड के हिसाब से ज्यादा होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, जिसके लिए दिस इज द रीजन ड्यू टू व्हिच इट इज डिफ्यूज इजीली.